Hello and welcome to Law Minds. This is Module 6 from the series of Contract Act 1. If you have seen Module 1, 2, 3, and 4, 5, it would be helpful. And for better understanding, if you haven't seen them, the link is in description. Do like, share, subscribe to Law Minds for better understanding. Today, in Module 6, we would be dealing with the points mentioned on the screen. It is legality of object to contingent contract. So moving forward, what is object in a contract? It has been covered in the part of module 1. But what is an object? Object is a thing for which a contract is made of, a basis of contract. If a object is not legal, the contract cannot be formed. So the prior step of contract is agreement. So agreement of illegal objected would be void. On a prima facie basis, void ab initio from starting. So this was all about legality of object. There is nothing more to explain you about it. It's just that the most important and fundamental thing is the object of a contract should be legal. If it is done for illegal purpose, the object cannot be enforced, and hence the contract cannot be called as a valid contract or a legal contract. Moving forward, the most important part is void agreements. What are void agreements? So, void agreements is one that is essentially null and has no legal effect from the outset. It is as if the agreement never existed. The key characteristics of a void agreement includes the further points. So, void agreements कौन से होते हैं? Void agreements वो होते हैं जो agreement कभी exist करते ही नहीं थे. तो कंडीशंस क्या क्या, जैसे इलीगल ऑब्जेक्ट होना, तो वो एग्रीमेंट इनिशियली ही वॉइड हो जाएगा क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. इलीगल थिंग्स के लिए कोई हम वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट बना ही नहीं सकते. सो फर्स्ट इज लीगली नॉन एग्जिस्टेंस. A void agreement is considered to be void ab initio, meaning from the beginning it lacks the essential element necessary to recognize as a valid contract. जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड हो तो उसमें क्या है, एसेंस ऑफ लीगैलिटी मिसिंग है, तो वो क्या हो जाएंगे, लीगली नॉन एग्जिस्टिंग. फिर आता है नॉन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. Since a void agreement is devoid of legal effect, it cannot be enforced by courts, and attempts enforce such as agreement will be unsuccessful. एक नॉन लीगल कॉन्सिक्वेंस, void agreement के जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो नॉन लीगल होते हैं, हम लीगली उन्हें इन्फोर्स नहीं करा सकते. थर्ड, कॉन्ट्ररी टू लॉ. वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी या जो लॉ स्टैब्लिश्ड है उसके अगेंस्ट में जाके बनाए हो, तो वो एग्रीमेंट्स भी वॉइड माने जाएंगे. एग्रीमेंट में बी डीम्ड टू बी वॉइड इफ दे आर अगेंस्ट द लॉ, public policy, or impossible to perform. For example, an agreement to commit an illegal act or an agreement to defy public policy may be void. होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. फोर्थ पॉइंट, नो ऑब्लिगेशन और राइट. पार्टीज टू अ वाइड एग्रीमेंट डोंट, ये इफेक्ट है. जो पार्टीज होती है वाइड एग्रीमेंट में, ना तो उनपे कोई लाइबिलिटी अटेन होती है, ना उनका कोई राइट होता है उन्हें इन्फोर्स कराने का. तो एग्रीमेंट में पार्टीज के ऊपर ना कोई ऑब्लिगेशन बचता है ना कोई राइट बचता है. तो ये पॉइंट ये बताता है. तो वाइड एग्रीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट्स हमने इसमें पढ़ लिए. अब वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं. वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस होता है, पहले हम रीड कर लेते हैं. On the other hand, a voidable agreement is initially valid, but due to certain defect, one party has an option for either affirms or void the contract. The key characteristics of voidable contract are as follow. जो कॉन्ट्रैक्ट जब वो फॉर्मेशन बनाए गए थे, जो एग्रीमेंट्स जब बनाए जा रहे थे, तो वो वैलिड थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते हुए वो क्या हो गए, अनफोर्सिएबल हो गए. यानी कि मतलब अब वो इफेक्ट में आ ही नहीं सकते. तो वो कैसे हो गए, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गए उस पार्टी पे जिसके लिए वो परफॉर्मेंस नहीं हुई है. ओके. सो अब जैसे मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें शादी करनी थी, तो शादी करनी थी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अब लेकिन जिस पर्सन से शादी करनी थी हमें पता लगा वो पहले से ही वेड है, मतलब शादी हो रखी है उसकी. तब क्या हो गया, अब तो वो ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो गया ना. पहले तो हमें लगा था कि वो लीगल है, लेकिन उसकी पहली शादी की वजह से क्या हो गया, वो इलीगल हो गया. तो अब वो क्या हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. वैसे ये वॉइड और वॉइडेबल दोनों माना जाएगा. फिर आता है वैलिड अंटिल अवॉइडेड. Unlike void agreements, voidable agreements are initially valid and binding
However, they cannot flew or flaw the defects that given one party the right to avoid the contract. वैलिड ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते एग्रीमेंट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं इनिशियल्स में, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं. पार्टीज ऑप्शन टू अवॉइड, पार्टीज पे एक ऑप्शन होता है इन्हें अवॉइड करने का. मतलब द पार्टीज विद द पावर टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ चॉइस टू ईदर इन्फोर्स द एग्रीमेंट और वॉइड इट. वंस द राइट इज एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल. जो इस पार्टी पे अधिकार होता है उसे वॉइड करने का, जब तक वो उसे डिक्लेयर यूज नहीं कर लेती, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट यूज हो जाएगा वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा. ठीक. ग्राउंड ऑफ अवॉइडेंस. Voidable agreements can be avoided on various reasons such as fraud, misrepresentation, coercion, undue influence. ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट void भी होते हैं, voidable भी होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अफर्म कर दें और हम उन्हें प्रूव कर दें कि हमारा जो कंसेंट था वो कोर्जन से लिया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट void होंगे. अनलेस वो voidable ही रहेंगे, जब तक प्रूव नहीं करते आप पे वो अधिकार नहीं आ जाता. Affected parties right to choose. The parties that has wronged or misleaded has right to choose whether to affirm the contract or void it. If the affected party decides to continue with the contract, it remains valid. जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, जिस पार्टी को मिसलीड करा गया है, उस पे अधिकार होता है उसे void डिक्लेयर करने का, voidable एग्रीमेंट्स में. जब तक वो पार्टी उसे यूज नहीं करती, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनफोर्सिएबल एंड वैलिड. तो होप आपको दोनों के बीच में राइट्स एंड सर्कमस्टेंसेस समझ में आए होंगे. अब एक बार हम डिफरेंस भी एक डिटेल में पढ़ लेते हैं. इनफोर्सिएबिलिटी क्या होती है? वॉइड एग्रीमेंट इनिशियल से ही इनफोर्सिएबल होते हैं, लेकिन वॉइडेबल एग्रीमेंट्स इनफोर्सिएबल होते हैं और फ्रॉम इनिशियल, बट जब तक वो राइट इस्तेमाल नहीं होता जब तक वो इनफोर्सिएबल रहते हैं. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. वॉइड एग्रीमेंट्स में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता, लेकिन वॉइडेबल एग्रीमेंट में अगर वो वैलिड बने रहे तो क्या होंगे, उसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. फिर क्या आता है, ग्राउंड्स ऑफ इनवैलिडिटी. वॉइड एग्रीमेंट्स आर इनवैलिड ड्यू टू फंडामेंटल रीजन सच एज इलीगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी. वॉइडेबल एग्रीमेंट्स आर वॉइडेबल ड्यू टू स्पेसिफिक डिफेक्ट्स लाइक फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो इसमें ग्राउंड्स ऑफ इनवैलिडिटी दे रखा है कि किस किस रीजंस की वजह से वो इनवैलिड होते हैं. पर अदर पार्टीज के राइट क्या क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज पे कोई राइट और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी के साथ मिसलीड हुआ है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, उस पे अधिकार होता है कि वो उस चीज को डिक्लेयर करा पाए वॉइड, अनपरफॉर्म कर पाए. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है 4 पॉइंट का. होप आपको वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया. मूविंग फॉरवर्ड, एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी क्या है? The realm of contract law, the concept of public policy plays a pivotal role in determining the validity and enforceability of agreement. जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक एग्रीमेंट को बिल्डअप कराने में. पब्लिक पॉलिसीज क्या होती हैं? पब्लिक पॉलिसीज मतलब जो स्कीम्स, फंडामेंटल राइट्स और जो भी लॉज बनाए गए वो पब्लिक पॉलिसी के अंडर आते हैं. तो उनके अबाइड, उनके रिस्पेक्ट करते हुए सारे एग्रीमेंट कराने चाहिए. अगर उनके अगेंस्ट में जाके कुछ कराया जा रहा है तो मानव जाति की हानि करी जा रही है. तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे? वॉइड और वॉइडेबल दोनों माने जाएंगे. उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं. पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है? Public policy represents the legal principle, values that affect the collective interest and welfare of society. क्या है? वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं. इट encompasses ethical standards, moral consideration, and fundamental legal doctrine that guide the functioning of the legal system. ये एथिकल, मॉरल कंसिडरेशन और फंडामेंटल डॉक्ट्राइन से रिलेटेड करता है जो लीगल सिस्टम को गाइड करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं. एग्रीमेंट कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसीज क्या होते हैं? एग्रीमेंट इज डीम्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इफ इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज दैट लीगल सिस्टम अपहोल्ड्स फॉर द ग्रेटर good of society. Such agreements are considered determined welfare of the public and result is not enforceable in a court of law. जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज जो सोसाइटी के लिए बनाई गई हैं उनके अगेंस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो लीगली वैलिड नहीं होते और एनफोर्सिएबल भी नहीं होते. तो क्या होंगे? वो वाइड माने जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. कौन सी कैटेगरीज ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी?
4 टाइप की कैटेगरीज डिफाइन करी गई हैं: इलीगल एग्रीमेंट, immoral agreement, injurious to public interest and compromising legal proceedings. तो इसमें क्या क्या चीज बताई गई है? illegal agreements, contract that involve illegal activities for violation of statutes fall into the category. For example, an agreement to commit a crime or engage a fraudulent activity is against the public policy. कुछ क्रिमिनल एक्ट करने के लिए अगर आप जैसे मैं बताऊं, आपने सुपारी दी किसी को मर्डर कराने के लिए, तो क्या हो गया? ये एक क्राइम हो गया, तो ये इलीगल एग्रीमेंट है, ये पब्लिक पॉलिसी में भी इलीगल एग्रीमेंट है। अब इमोरल एग्रीमेंट क्या होते हैं? कॉन्ट्ररी टू द accepted moral standard may be considered against public policy, include agreement involving prostitution, gambling. अब ये क्राइम नहीं है, ये मॉरली और एथिकली रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया? मॉरली इमोरल एग्रीमेंट, लाइक गैम्बलिंग हो गया, क्राइम नहीं है लेकिन वो मॉरली रॉन्ग है। कहीं कहीं जगह वो क्राइम भी माना जाता है, लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो वो क्या है? मॉरल रॉन्ग है। सॉरी। इंजूरियस टू पब्लिक इंटरेस्ट, agreement that harms the public interest or creates situations that are detrimental to the society's well-being are void. जो सोसाइटी के अगेंस्ट में करे जाए, लाइक टेररिज्म है, वो इंजूरियस कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। ठीक। फिर कॉम्प्रोमाइजिंग लीगल प्रोसेस, ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस इज जनरली वॉइड एग्रीमेंट। कुछ ऐसा प्रोसीजर करना या कुछ ऐसे एग्रीमेंट करना जिससे कि जो स्मूथ लीगल फंक्शनिंग किसी प्रोसीडिंग की है वो फुलफिल ना हो पाए, वो वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। तो ये 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। फिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो एक कॉमन मोरालिटी, एक मोरालिटी होती है, स्टैंडर्ड मोरालिटी होती है एक पर्सन के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, उसका फिलफिल ना होना। लेजिस्लेटिव एंड पब्लिक रेगुलेशन, कंप्लाइंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, लॉ फॉलो ना करना, उसकी वजह से होता है। पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है वो वॉइड माने जाएंगे और अनएनफोर्सेबल होंगे लीगल में। नो लीगल रेमेडी, इनके अगेंस्ट आप इन्फोर्सेबिलिटी या कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। तो ये बता रहा है इसमें केसेस के एग्जांपल्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्ट्रेन द ट्रेड, an agreement unreasonably restricted a trade to competent against the public policy. अब आपने क्या करा? ट्रेडिंग के बीच का ऐसा एग्रीमेंट करा कि वो ट्रेडिंग को हिंडर करे। तो राइट टू ट्रेड तो आपका अधिकार है, तो आप कैसे इसे पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट माना जाएगा? तो ये क्या हो गया? वॉइड और इलीगल में आएगा ये। ठीक। बाकी ये थोड़ी डिटेल दे रखी है। होप यू हैव गॉट कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। हम आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशन। अब अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन क्या होता है ये इस वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको मॉड्यूल 5 की वीडियो रेफर करनी पड़ेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी डाउट हो अभी तक की वीडियो में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपकी डाउट स्पीडीली रिजॉल्व कराएंगे। फिर आते हैं एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशन में। In contract law, consideration is a key element and denotes something value exchange between the parties to a contract. अब मैं बेसिक आइडिया दे देता हूं अगर आपने मॉड्यूल 5 नहीं पढ़ा है। कंसिडरेशन क्या होता है? एक वैल्यू अमाउंट होता है, ये कुछ भी ऐसी चीज ऑब्जेक्ट होता है जिसके बिहाफ पे वो काम करा जाता है, जिसके जो बेसिस बनाता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डअप करने के लिए। अब अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है उसके लिए समझने के लिए, कंसिडरेशन इज अ क्विड प्रो को, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट में। इट प्रॉमिस के बाद जो हम एक बाइंडेंस देता है कॉन्ट्रैक्ट को, एक अबाइडिंग नेचर, एक फॉर्मल नेचर देता है कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट को। तो लॉफुल और अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन लीगल, मोरल and not against the public policy is fundamental requirement of enforceable of contract. कंसिडरेशन आप कैसा भी दे सकते हैं। आईफोन के बदले 1 रुपया भी एक वैलिड कंसिडरेशन ही माना जाएगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है, आप लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो मॉरली अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी जा रही है तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। लाइक आई टेल यू, आपने किसी को कार से सर्विस टैक्सी के द्वारा छोड़ा, आप टैक्सी सर्विसेज करते हैं, लेकिन आप पेमेंट किस मांग रहे बेसिस पे मांग रहे हैं? किसी इमोरल चीज के बेसिस पे मांग रहे हैं। तो क्या हो गया? अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे वो एग्रीमेंट। ठीक।
कैटेगरीज ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होते हैं? इलीगल एक्ट के लिए कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ इलीगल एक्ट, लाइक प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या ट्रैफिकिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, एनीथिंग इमोरल एक्ट, कुछ भी ऐसा हो गया जो मॉरली इनकरेक्ट है, अगेंस्ट अ पब्लिक पॉलिसी, लॉ के अगेंस्ट जाके कोई काम कराना, वॉइड वर्सेस अनइनफोर्सेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं और अनइनफोर्सिएबल होते हैं, इनके इफेक्ट्स दे रखे हैं वॉइड। इनिशियली ये कंप्लीटली बिल्कुल इनका परफॉर्मेंस और इन्फोर्सेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेसिस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन ही अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा, तो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। एक सीरीज होती है कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डअप करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर उस स्टेप में से एक भी चीज मिसिंग हो जाए तो आप स्टेज चढ़ ही नहीं सकते, तो वो उधर ही वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। फिर ये रेमेडीज दे रखी है, पार्टीज कैन नॉट सीक लीगल रेमेडी, इसमें लीगल रेमेडी नहीं होती। जो ये एक कॉमन सेंस चीज है, जब कोई चीज वॉइड है और अनइनफोर्सेबल है उसके लिए आपको लीगल रेमेडी मिलेगी ही नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, ये डिटेल में आपको नोट्स में दे रखा है, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं कंसिडरेशन विदाउट एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। अब ऐसे एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन हो सकते हैं, इसको वैसे तो समझाना नहीं बनता क्योंकि हमने मॉड्यूल 5 में ऑलरेडी कवर कर चुका है, लेकिन अगर आपने मॉड्यूल 5 नहीं देखा तो बेटरमेंट के लिए अभी हम आपको इन डिटेल समझा देते हैं। लेकिन और अगर आपको डिटेल में जानना है तो रेफर टू मॉड्यूल 5 वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अगेन एंड अगेन माय एडवाइस। कंसिडरेशन जैसा हमें पता है, कंसिडरेशन क्या है? एक्सचेंज वैल्यू है किसी चीज को करने के लिए, बेसिस को। अब कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट है, बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता, एक्सेप्ट वो आपको किसी लव या अफेक्शन के अगेंस्ट में दिया गया हो, लाइक आपके पेरेंट्स है, वो आपको कुछ गिफ्ट देते हैं तो लीगल है, भले ही आप उसमें कुछ उनको ना दें। तो ये एक्सेप्शन हो गया गिफ्ट्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। फिर इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन में जो इन्फोर्सिएबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रोमिसरी एस्टोपल, ये आपको रिमेंबर करना चाहिए क्योंकि ये डिटेल में भी आ जाता है, इसको आगे हमने डिटेल में समझाया है आने वाली वीडियोस में। तो आने वाली वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा लॉ माइंड्स को, और इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा अगर आपको पसंद आ रही है। तो प्रोमिसरी एस्टोपल क्या होता है? In certain situation, a promise may be enforced even without consideration if one party relies on the promise determined. The concept is known as promissory estoppel. एस्टोपल का मैं हिंदी में मतलब समझाऊं मजाकिया वे में, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, एस्टोपल ये बोलता है। तो कोई एग्रीमेंट्स आपको वादे पे बनाएगा कि भाई तू मुझे काम करके दे दे, डिलीवरी के टाइम मैं तुझे पैसे दे दूंगा, सीओडी, जो आप बेसिक डेली दिनचर्या में करते हैं, जब आप Amazon फ्लिपकार्ट या कोई भी मीशो से आप शॉपिंग करते हैं तो सीओडी, तो वो प्रोमिसरी एस्टॉपल होता है। तो वो प्रोमिसरी एस्टॉपल के लिए इन्फोर्सेबिलिटी लाजमी है और लीगल है, विदाउट कंसिडरेशन। हम बिना कंसिडरेशन के चीज को मंगाते हैं, वो लीगल होता है, तो हमें कंपनी सू कर सकती है अगर हम उसका पेमेंट ना करें। तो ये हो गया प्रोमिसरी एस्टॉपल। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं प्रोमिसरी एस्टोपल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक क्लियर प्रॉमिस होना, अमाउंट क्लियर होना, आपने उसको एक्सेप्ट करा है और उसको, उस प्रॉमिस को आपने एक्सेप्ट करा है, तो वो क्या हो गया? क्लियर प्रॉमिस। फोर्सिएबल रिलायंस, प्रॉमिस मस्ट रीजनेबली रिलाई द प्रॉमिस, promisee must reasonably rely the promise and the reliance should be foreseeable। मतलब जैसे कंपनी आप पे भरोसा करती है अमेजोन वाली कि आप पैसे दे देंगे जब आप सीओडी ऑप्ट कर रहे हैं, आप लीगली बाउंड हो जाते हैं जब आप सीओडी ऑप्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया? एक फोर्सिएबल रिलायंस हो गया कि हाँ आप पैसे तो देंगे ही देंगे। डिटरमेंटल रिलायंस, आपको डिटरमाइन होता है कि पैसे मिल जाएंगे। इन्फोर्सिबिलिटी, नो अवॉइड इनजस्टिस, एनफोर्सिंग द प्रॉमिस इज नेसेसरी टू अवॉइड इनजस्टिस, आपको पैसे तो सीओडी में देने ही पड़ेंगे वरना वो इनजस्टिस हो जाएगा, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। गिफ्ट्स होते हैं, उनकी एसेंशियल्स क्या होते हैं? वो वॉलेंटेरीली होने चाहिए और डोनेटिव नेचर के होने चाहिए। दो चीज, वॉलेंटेरीली, आप जबरदस्ती कोई गिफ्ट नहीं ले सकते किसी से, वो वॉलेंटरी नेचर के होने चाहिए, आउट ऑफ लव एंड इफेक्शन दिए जाने चाहिए, जब वो गिफ्ट बिना कंसिडरेशन के लिए लीगल माने जाएंगे। और वो डोनेटिव नेचर, जब आप एनजीओ में पैसा देते हैं तो आपको जैसा सोचते तो नहीं है कि आपको कंसिडरेशन में इन रिटर्न कुछ मिलेगा, तो क्या हो गए? डोनेटिव नेचर के हो गए। फिर कंप्लीटेड और कंडीशनल गिफ्ट्स हो गए। कंप्लीटेड गिफ्ट
मतलब इररिवोकेबल होते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिए। कंडीशनल गिफ्ट क्या हो गए, ये गिफ्ट की अलग कैटेगरी हो गई। फ्यूचर में आपसे कंसिडरेशन लिया जा सकता है, लेकिन लिया जा सकता है फ्यूचर में आने वाली कंटिजेंसी या कंडीशंस के बेसिस पे आप पे कोई काम कराया जा सकता है। वो एक्सप्रेसली डिटरमाइन होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं चलेगा। ठीक। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन वो हमारा डोनेटिव नेचर में ही आएगा। चैरिटेबल प्लेजेस मतलब जो हम बेसिकली एनजीओ में पैसा देते हैं उस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये था आपका इसके लिए एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन मैरिजेस, ये एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं। मैरिज क्या है, एक लीगल अधिकार है, आपका शादी करने का लीगल अधिकार है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि आपकी शादी को रोक रहा है या आपको शादी करने से रोक रहा है, वो क्या होंगे, वॉइड होंगे, वो गलत माने जाएंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात करते हैं, एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स एन इंडिविजुअल राइट टू मैरी वे ऑफन कंसिडर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो ये चीज कवर होगी हमारे एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में ही, लेकिन आपको एक ब्रीफ और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैंने पॉइंट इधर क्लियरिफाई करा हुआ है। कोर्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम इन चूजिंग द लाइफ, आपके पास पूरी फ्रीडम है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए। Public policy consideration. Agreement in restraint of marriages are scrutinized due to potential impact on public policy. The freedom to marry is generally considered as fundamental right, जैसा कि हमने बताया। Types of restraint क्या हो सकते हैं, जनरल restraint, मैरिज इंटायरली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड में नहीं हो सकती। स्पेसिफिक रिस्ट्रेंट इस पर्टिकुलर क्लास से नहीं कर सकते। कंडीशनल रिस्ट्रेंट की हमें ये चीजें चाहिए जब हम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी रिस्ट्रेंट्स हो गए जिनसे मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स पे आते हैं। कोर्ट इज लाइकली टू इनवैलिडेट एन एग्रीमेंट दैट इंपोजेस अनरीजनेबल और एक्सेसिव रिस्ट्रेन ऑन अ मैरिज, मे वेरी ऑन कल्चर टू कल्चर, नॉर्म्स टू नॉर्म्स। ये थोड़ा सा हमारा अनरीजनेबल क्या हो गया, एक केस टू केस डिपेंडेबिलिटी हो गई। रीजनेबल तो हमने बता लिया, जो जनरल रिस्ट्रेंट्स हैं उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं है, जो हमने तीन ऊपर बात करी। अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट कोर्ट टू कोर्ट, केस टू केस डिपेंड करता है। रीजंस क्या हो सकते हैं रिस्ट्रेंट के, प्रिजर्वेशन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिजर्वेटिव सोसाइटी, प्रोटेक्टिंग बिजनेस इंटरेस्ट, प्रोटेक्टिंग आवर सोशल नॉर्म्स, ये सब हो सकते हैं रीजंस। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर जानना कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज के लिए वो एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। और बाकी आप डिटेल नोट्स से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ समझाने का नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आए, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दे रखा है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन एज अ यूनिवर्सिटी लेवल के लिए आपको बस इतना जानना है कि जो एग्रीमेंट्स मैरिज को रिस्ट्रेन करें वो कैसे हैं, वॉइड है, अनरीजनेबल है, अनइनफोर्सिएबल है। ठीक। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ट्रेड्स सिमिलर टू एग्रीमेंट्स टू रिस्ट्रेन ऑफ मैरिजेस, ये भी अगेंस्ट द पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के होते हैं, ये भी वॉइड होते हैं और ये भी अनएनफोर्सेबल होते हैं। ये पब्लिक पॉलिसी के ही पार्ट चल रहे हैं, तो आपको डिटेल में रीड कर लीजिएगा, ऐसा इनकी इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रिस्ट्रेंट्स के टाइप बता देते हैं एक बार। नॉन कंप्लायंस ऑफ एन एग्रीमेंट, आपने कुछ चीज जो आपको एग्रीमेंट में बताई गई थी वो आपने नहीं करी, उसकी वजह से ये ट्रेड रुक सकता है। नॉन सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व्स द सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्लाइंट, कस्टमर, एम्प्लॉइज एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज, या कुछ उनका डिस्प्यूट हो गया उसकी वजह से। कॉन्फिडेंशियलिटी थी कोई एग्रीमेंट में, उसको आपने ब्रोक कर दिया, उसको डिस्क्लोज कर दिया, उसकी वजह से ट्रेड रिस्ट्रेंट हो गया, ये हो गया जनरल। इन जनरल एग्रीमेंट में आपने कुछ ऐसा इलीगल ऑब्जेक्ट रख के ट्रेड रिस्ट्रेंट करने की कोशिश करी, वो होंगे वॉइड। ठीक। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस होता है इन सब एग्रीमेंट्स में। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस क्या बोलता है कि वो जो चीज आपने करी है वो पब्लिक पॉलिसी या जनरल पर्सन अगर करता तो उसके लिए रीजनेबल होता, तो कोर्ट इसे बोलता है टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। उसके बेसिस पे सारे एग्रीमेंट वॉइड और वॉइडेबल या फिर वैलिड डिक्लेयर करे जाते। तो ये सब इसमें आपको इन डिटेल बताया गया है, बाकी इसमें इन डेप्थ जाने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, आपको बस उसका नेचर और उसकी कंप्लाइंस जाननी है। फिर आते हैं एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। अब एम्बिगुअस और अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में जानने की सख्त जरूरत है। एम्बिगुअस शब्द और अनसर्टेन शब्द थोड़े से डिफरेंट है। एम्बिगुअस मतलब जो कि कंप्लीट ना हो, खाली खाली छोड़ा गया हो, तो उसके पॉइंट दे रखे हैं वेग लैंग्वेज।
कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिससे कि क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल हो जाते हैं। वॉइडेबल कैसे हो जाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया, तो अगर वो रीजनेबल हुआ, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को पार कर गया, तो जब कोर्ट उन्हें वॉइडेबल डिक्लेयर कर देगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, इफ एन एग्रीमेंट लैक्स एसेंशियल डिटेल्स टू लीव अ स्पेसिफिक क्लॉज it may lead to uncertainty. Incomplete contract may not address all potential scenarios. Incomplete information, insufficient information दी गई, कौन सी डेट को क्या क्या होना है, कब डिलीवरी होनी है, कैसे कैसे काम होना है, किस वे में आपको क्या चाहिए, तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, पहले आपने लिख दिया कुछ, उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट